Hi, welcome to India Live with Sunil Jha. Today we will be talking about Riya Chakravarti and Sushant Singh Rajput. आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होता। आज कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मुझे आज आना पड़ा और आप लोग से बात कर रहा हूं और 10 बजे फिर बात करूंगा। उसका रीजन ये है कि आज रिपब्लिक टीवी ने एक न्यूज चलाया जो अपने आप में काफी पॉजिटिव है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ कंफर्मेशन फ्रॉम सीबीआई। कोई कंफर्मेशन अभी है नहीं, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू confirm it and say it in a big way. But the very fact that Republic TV ने ये खबर चलाई, चाहे sources के through ही, that CBI would soon be adding section 302 of IPC in Sushant Singh Rajput case, which clearly means that Sushant Singh Rajput case is no more an abetment of suicide case, but it is a case of murder. And if CBI is adding that section, it's a big news. There are other developments also which I'll be touching at around 10 p.m. during Speak Up India. Speak Up India के दौरान मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं वो एक और खबर है और बड़ी खबर है। और if you remember we had spoken about this, that is whether Sushant Singh Rajput and Riya Chakravarti met on 13th of June. अब ये कहा जा रहा है, बीजेपी के एक लीडर है महाराष्ट्र के, मुंबई के, who has claimed that Sushant Singh Rajput went to drop Riya Chakravarti on the 13th night. Now he's not very specific about the time कि सुशांत सिंह राजपूत कब छोड़ने गए थे रिया चक्रवर्ती को, लेकिन उनका दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत 13 तारीख की रात को रिया चक्रवर्ती को उनके घर छोड़ने गए थे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक शो किया था 10 सितंबर को, 10th ऑफ सितंबर को, और हमने कहा था कि सीबीआई के लिए जरूरी है कि सीबीआई थोड़ा फोकस रिया चक्रवर्ती के घर पर भी करे। सुशांत सिंह राजपूत के घर पे तो सबका फोकस है, फ्लैट पे सबका फोकस है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के फ्लैट पे किसी का फोकस नहीं है। वो सवाल हमने इसलिए पूछा था कि जानना जरूरी है कि सुशांत सिंह राजपूत आखिरी बार रिया चक्रवर्ती के घर कब गए थे। सो हम लोगों ने लगातार सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट को लेकर फोकस किया, छत, दरवाजा, चाबी, कमरा, कमरे में पंखा, बेड, सब कुछ पे फोकस किया, लेकिन रिया चक्रवर्ती के घर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, न उनके अपार्टमेंट पे किसी ने ध्यान दिया। No one actually thought that Sushant was going and staying there for so many days. So maybe there would be a lot of things belonging to Sushant which must be there at Riya Chakravarti's house, and that should also be looked into. This is something that we had discussed on the 10th of September. Now today, because a BJP leader has raised this issue, I want to revisit that topic back at 8 p.m. today. I have invited Bhivash Jha as an IT expert to be here because there are a lot of questions related to IT and also otherwise to discuss a few things. And also I am doing it from this new platform. So hopefully this platform is successful. And this is the first show that I'm doing using this new platform, which gives me some added advantage. But this is considered to be a live test of this show. I have done the test earlier also. Mock run, trial runs I have done with you people. Some of you have joined that, joined me then. And also Vivash was there during that mock drill. But today we are doing a live test of this platform. If it becomes successful and all of you people approve it and like it, then we may just move to this platform for the India Live with Sunil Jha show. That comes at 8 p.m. for which we are sitting here right now. और वो शो को हम लोग इसी प्लेटफॉर्म से लेकर आएंगे क्योंकि ये गेस्ट बेस्ड शो है और ये प्लेटफॉर्म गेस्ट को लाने के हमें अपॉर्चुनिटी देता है। स्पीकअप इंडिया इस प्लेटफॉर्म से फिलहाल नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि स्पीकअप इंडिया में हम कनेक्ट करते हैं गेस्ट को, मतलब ओपन करते हैं प्लेटफॉर्म फॉर एनीबडी टू कम, और उसमें ये अपॉर्चुनिटी हम देते हैं कि जो भी चाहे, कहीं से भी चाहे दुनिया में, वो हमसे कनेक्ट कर सकता है। तो शायद उसमें प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को, इसलिए हम फिलहाल उसको नहीं टच करेंगे। 10 p.m. शो जैसे हम करते हैं मोबाइल से वैसे ही करेंगे, बट ये हम प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, होपफुली ऑल ऑफ यू लाइक इट। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, did Riya Chakravarti and Sushant Singh Rajput meet on the 13th of June? Now this is a critical question. It's a critical question because of the fact that Riya Chakravarti okay, one second, just give me a second. Come, Ajay. Come. Okay.
So basically, we want to discuss what is the status as far as 13th of June is concerned. There's a claim by BJP leader saying that Riya Chakravarti and Sushant Singh Rajput met on the 13th of June. Now, we are not sure whether they actually met or not met, but the fact is that this brings Sushant Singh Rajput's visit to Riya Chakravarti's house very important. If he had gone to Riya Chakravarti's house after Meetu Singh left Sushant Singh Rajput's flat around evening on the 12th of June, and the claim of this BJP leader is that someone who's aware, someone who saw the car park, जिसने उस गाड़ी को, सुशांत सिंह राजपूत की गाड़ी को रिया चक्रवर्ती के अपार्टमेंट के बाहर देखा, उसने उनको बताया कि सुशांत सिंह राजपूत 13 तारीख को रात रिया चक्रवर्ती घर आए थे। अब ये सवाल उठता है कि क्या मीतू सिंह के जाने के बाद 12th को सुशांत सिंह राजपूत गए थे? कुछ फैक्ट्स हैं जिसको लेकर हमको बात करने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि आखिर ये क्या पॉसिबल था या नहीं था। पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं भी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। एक ही चीज है जो कई सारी चीजें को मतलब डाउट में डाल देता है, वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का फोन 2:22 से 13 तारीख को बंद था, और वो उनकी मौत की जब खबर आई, the news of his death came around 2:30 on the 14th, तब तक उनके फोन से कोई ना कोई कॉल किया गया, ना उन्होंने कोई कॉल रिसीव किया। अगर वो ये खबर को सही माने तो, और वो गए थे, तो फोन उनके पास होना चाहिए था, लेकिन फोन उनके पास नहीं था। तो इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, हम लोग ने उसको भी डिस्कस किया है कि हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसने उनका फोन ले लिया हो, कोई कारण हो जो उनको रिया चक्रवर्ती के साथ भेजा गया हो उनको ड्रॉप करने के लिए। लेकिन अगर ये बात सही है कि सुशांत सिंह राजपूत की कार रिया चक्रवर्ती के फ्लैट के बाहर थी, तो फिर वो फोकस में आ जाता है पूरा अपार्टमेंट। अब जो चीजें देखने वाली बात है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई। लेट्स डू अ बैक काउंट। अब जो सीसीटीवी फुटेज है रिया चक्रवर्ती के अपार्टमेंट का, मुझे मालूम नहीं कि मुंबई पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज लिया था या नहीं लिया था, लेकिन 15th of May से 14th of June का जो पीरियड है बहुत रेलेवेंट हो जाता है। वो रेलेवेंट इसलिए है कि जो कुछ भी हुआ है वो इसी पीरियड में हुआ है, यानी रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच अगर दूरियां बढ़ी हैं, डिस्टेंस बढ़ा है, तो वो इसी पीरियड में बढ़ा है, यानी 15th of May से लेकर 14th of June के बीच ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है। अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत का विजिट रिया चक्रवर्ती के घर 15 मई के बाद और 14th जून से पहले वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका कारण यह है कि ये जानना जरूरी है कितनी बार सुशांत गए थे, कितने दिन तक थे, कितनी बार उनकी गाड़ी गई, कितने दिन वो रहे, वो किस किस से मिले और किस किस से उन्होंने बात की। तो जो फैक्ट्स हमारे पास है वो कुछ फैक्ट्स इस कदर है कि सुशांत सिंह राजपूत डाइड ऑन द 14th और 13th, वी डोंट नो, बट एज पर पोस्टमार्टम ही डाइड ऑन द 14th अराउंड बिटवीन 11 AM एंड 1 PM। ये फैक्ट्स हैं जो मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। यानी पोस्टमार्टम के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की डेथ 11 बजे 14 तारीख को 11 बजे से 1 तारीख के 1 बजे के बीच हुई। एक और विंडो है जो हम लोगों ने जिसको डिस्कस किया था कि अगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है और सुशांत सिंह राजपूत का फोन बंद था, तो हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ 2:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के विंडो के बीच भी हुई हो। अब बीच में ये कहानी आ जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के घर गए। इसको दिमाग में रखना है। कोई कॉल सुशांत सिंह राजपूत ने 3:20 से यानी 2:22 से 13 तारीख को 13th जून को 2:22 PM onwards, he did not make any call. He did not receive any call. He was in his flat. That is what is known. That Sushant Singh Rajput was in his flat and Riya Chakravarti was at her father's place, because Riya Chakravarti had left Sushant Singh Rajput's house on the 8th of June when there were some differences, and she left Sushant Singh Rajput's house on the 8th of June and she blocked his number on the 9th of June evening. So Riya Chakravarti was at her father's place, and the claim is that Sushant Singh Rajput went to her house, that is father's house,
on the 13th of June after an evening in the night. Now we don't know the time because he was also not specific about the time. So we have so far discussed all about the Sushant Singh Rajput family and the flat, not family, but the flat, which is in the question where Sushant Singh Rajput died. But let's have put our focus on the flat and the apartment of Rhea Chakravarti and the facts related to it. उसके बाद एनालाइज करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। रिया चक्रवर्ती जो फैक्ट्स है उसके मुताबिक 14th of June को रिया चक्रवर्ती after leaving Sushant Singh Rajput's flat on the 8th of June did not, as per record, did not go to Sushant Singh Rajput's house till 14th of June. यानी 8th जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर से निकली और उसके बाद एज पर रिकॉर्ड रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर नहीं गई और एज पर रिकॉर्ड सुशांत सिंह राजपूत भी रिया चक्रवर्ती से मिलने नहीं आए। ये रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है, रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में भी कहा है। जो भी कहा उसमें कहीं भी सुशांत सिंह राजपूत के विजिट का या उनसे मिलने का कोई जिक्र नहीं है। 9th इवनिंग को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के फोन को ब्लॉक कर दिया और 8th की रात को ही दिशा सालियान की डेथ हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत ने 9th को 11, साढ़े 11-12 बजे रिया चक्रवर्ती को फोन करने की कोशिश की थी। रिया चक्रवर्ती ने फोन नहीं उठाया था, मैसेज किया था, मैसेज का जवाब भी नहीं दिया था। उसके बाद सुशांत ने एक मैसेज रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को भी किया जिसका जवाब नहीं मिला। और ये सब दिशा सालियान के डेथ के नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, उस दिन की बात। और रिया चक्रवर्ती ने ये जानते हुए भी कि सुशांत सिंह राजपूत परेशान होगा बिकॉज दिशा सालियान हैड डाइड द प्रीवियस नाइट, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के फोन को 9th इवनिंग को ब्लॉक कर दिया। नाउ 14th around 2:45 PM someone, one of the friend of रिया चक्रवर्ती called her, यानी रिया चक्रवर्ती को उनके किसी फ्रेंड ने फोन किया कि इस तरह की खबरें कुछ अफवाह उड़ रही हैं, some rumors are there, please ask सुशांत to clarify it। तो रिया चक्रवर्ती ने कहा ओके ठीक है, एंड देन शी पुट द फोन डाउन। रिया चक्रवर्ती ने 15 मिनट वेट किया और 15 मिनट के अंदर सब जगह कंफर्म हो गया। रिया चक्रवर्ती डिड नॉट गो टू सुशांत सिंह राजपूत हाउस ऑन दैट डे, यानी 14th को डेथ के अनाउंसमेंट के बाद रिया चक्रवर्ती डिड नॉट गो टू सुशांत सिंह राजपूत हाउस। रिया चक्रवर्ती स्टेड एट हर ओन हाउस। There is no information on record. There is no information on record of Riya Chakravarti's movement out of her house on the 14th of evening or during entire 14th of June. The only movement that she made was on the 15th morning. 15th morning she went to the mortuary. और रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं मॉर्चुरी नहीं गई थी, मैं बाहर ही वेट कर रही थी। जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पोस्टमार्टम के बाद ले जा रहे थे वैन में, तब मैंने उसको देखा था। आई टच्ड हिज बॉडी, सेड आई एम सॉरी बाबू बिकॉज ऑफ द ऑल द ड्रामा दैट वाज गोइंग ऑन, एंड देन आई टच्ड हिज फीट एंड दैट्स अबाउट इट। लेकिन जो वीडियो आया, एक वीडियो आया था, मैं बताता हूं किसका वीडियो है। ये वीडियो शूट किया गया बाकायदा वहां पर जब रिया चक्रवर्ती गई थी। ये 15th जून की मॉर्निंग का वीडियो है और मानव मंगलानी ने ये वीडियो शूट किया है। मानव मंगलानी कैमरामैन है जो कई सारे सेलिब्रिटी के फोटोग्राफ शूट करते रहते हैं, उनका ये वीडियो है। और ये इस वीडियो में साफ दिखता है कि रिया चक्रवर्ती मॉर्चुरी से बाहर आ रही है और अपने कार में जा रही है। उनके साथ एक जेंट्स और एक लेडी है। वो लेडी कौन है मैं नहीं मालूम। जेंट्स इज सपोज्ड टू बी सम स्मॉल टाइम प्रोड्यूसर, आई हैव नो आइडिया, बट दैट्स व्हाट इट इज बीइंग सेड। उसके बाद शौविक चक्रवर्ती उनको कार में बैठाते हैं। शौविक चक्रवर्ती भी बैठते हैं, रिया चक्रवर्ती के फादर भी गए थे, वो भी बैठते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। ओके, तो रिया चक्रवर्ती का मूवमेंट 15th मॉर्निंग को है और 14th को रिया चक्रवर्ती के मूवमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद से लेकर 15 तक रिया चक्रवर्ती के मूवमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। नाउ व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन? वी आर फोकसिंग ऑन रिया चक्रवर्तीज हाउस, नॉट ऑन दिस। आई एम ओनली टेलिंग यू दिस बिकॉज सो दैट यू नो कि रिया चक्रवर्ती का मूवमेंट बहुत लिमिटेड था। रिया चक्रवर्ती डिड नॉट मूव आउट टू से। अगर कोई भी बीजेपी का पॉलिटिशियन आके कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत छोड़ने गए थे उनके घर, तो दैट मीन्स रिया चक्रवर्ती का मूवमेंट हुआ था। लेकिन कहीं पर भी रिकॉर्ड में नहीं है कि रिया चक्रवर्ती का कोई भी मूवमेंट हुआ। नाउ
अगर रिया चक्रवर्ती का मूवमेंट हुआ, अगर रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में गई, तभी तो सुशांत सिंह राजपूत उनको छोड़ने उनके घर गए होंगे। दो चीजें, पहला, कहा जाता है कि 8th को रिया चक्रवर्ती लेफ्ट सुशांत सिंह राजपूत हाउस, एंड आफ्टर दैट रिया चक्रवर्ती did not come to Sushant's house. Now, before I go into this detail, I'll connect Vibhash. Vibhash is already on the line. And then I will narrate it and then I will discuss it so that he's there in my visual contact. So let me connect Vibhash and then let's see if the platform is also working fine, and then we'll have a proper interaction also. Vibhash, can you see me? Yes, I can. Okay, fine. Can you hear me? Loud and Yes, clear? absolutely clear. Absolutely Okay, clear. so let me complete the narration, Vibhash, and then I will come to you. Okay? Sure. So what we know is this, that if अगर जो बात बीजेपी के पॉलिटिशियन कह रहे हैं अगर वो सही है, उसके लिए दो मूवमेंट की जरूरत है। पहला मूवमेंट रिया चक्रवर्ती का अपने घर से सुशांत सिंह राजपूत के घर तक, वो भी मीतू सिंह के जाने के बाद, यानी 12 तारीख को मीतू सिंह 4-5 बजे शाम को गई हैं, उसके बाद रिया चक्रवर्ती का मूवमेंट सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत का क्लेम है इस पॉलिटिशियन का कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के घर उनको छोड़ने 13 तारीख को रात में गए, जब भी गए, टाइम को छोड़िए, गए, यानी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का एक साथ मूवमेंट सुशांत सिंह राजपूत के घर से रिया चक्रवर्ती के घर पे होना चाहिए। नाउ सुशांत सिंह राजपूत अगर छोड़ने गए थे तो जाहिर है अपनी गाड़ी से गए होंगे, तो फिर रिया चक्रवर्ती किस गाड़ी से आई उनके घर और कैसे आई थी, ये भी सवाल आएगा। सवाल कई सारे हैं कि रिया चक्रवर्ती किस गाड़ी से आई, क्या उनको शौविक छोड़ने आए, और शौविक छोड़ने आए तो चले क्यों गए, और फिर सुशांत सिंह राजपूत छोड़ने क्यों गए, और वो भी तब क्योंकि 13th इवनिंग की बात हो गई है और 13th को 3:22 से विभाष वी हैव डिस्कस दिस कि 2:22 PM के बाद सुशांत सिंह राजपूत का फोन बंद था। तो फिर अगर रिया चक्रवर्ती को छोड़ने जाते सुशांत तो उनका फोन ऑन होना चाहिए था, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत का फोन ऑफ क्यों था? ओके, अब ये बात कैसे चेक की जा सकती है? ये बात चेक की जा सकती है, दैट्स व्हाई आई हैव कॉल्ड विभाष हियर। इट कैन बी चेक्ड ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लाइक सीसीटीवी कैमरा। कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा रिया चक्रवर्ती के कैंपस में होगा, जाहिर आजकल सब जगह होता है, उसका फुटेज होगा। तो क्या मुंबई पुलिस ने वो फुटेज उठाया? क्या मुंबई पुलिस ने उस फुटेज को एनालाइज किया? एक तो वो है। दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत के कार के बारे में विभाष बताएंगे आपको बहुत सारी चीजें अभी, कि सुशांत सिंह राजपूत जो कार चलाते थे उसमें कई सारे गैजेट्स थे जो बता सकते हैं। ये दूसरा चीज है जो मूवमेंट को बता सकता है। सीसीटीवी फुटेज अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। इन पॉलिटिशियन का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को छोड़ने के लिए उनके घर तक गए, यानी फ्लैट तक गए। अगर मान लेते फ्लैट तक नहीं भी गए तो गेट तक तो आए होंगे, तो फिर गार्ड को तो पता होगा। तो रिया चक्रवर्ती के कैंपस में जो गार्ड्स ऑन ड्यूटी होते हैं और जो उस दिन ड्यूटी पे था, क्या उसकी क्वेश्चनिंग की गई? क्या उससे पूछा गया? क्या उसको पता है? और एक गार्ड तो होगा नहीं, 2-3 गार्ड होंगे, उसके अलावा और स्टाफ होंगे, इलेक्ट्रीशियन होगा, प्लम्बर होगा, क्लीनर होगा, ये सारे लोग होंगे जो बता सकते हैं कि 13 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत गए थे या नहीं गए थे। ये कोई माइनर क्वेश्चन नहीं है। अभी ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि अगर सीबीआई 302 ऐड कर रही है विभाष, तो फिर 302 उस पिटीशन में या उस एफआईआर में जिसका मेन एक्यूज्ड, प्राइम सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती है, तो फिर ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये बीजेपी के पॉलिटिशियन क्लेम कर रहे हैं या कोई और भी क्लेम कर रहा है, तो फिर ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत 13th की रात को रिया चक्रवर्ती के घर गए थे छोड़ने या नहीं गए थे। नाउ सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती घर में बहुत दिन रहे थे या रहते थे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोग नहीं जानते हो। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत जब जाते थे उनको किसने देखा, कब देखा, आखिरी बार कब देखा, आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत किस दिन गए, ये गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, उनके स्टाफ, इन सबको पता होगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं पता, स्टाफ को भी नहीं पता विभाष, तो कम से कम नेक्स्ट डोर नेबर को तो पता होगा। जो इंफॉर्मेशन है वो इस कदर है, जहां रिया चक्रवर्ती रहती है उस फ्लोर में 3 फ्लैट्स हैं,
एक में रिया चक्रवर्ती रहती है और 2 फ्लैट और है। उनमें से शायद उस दिन उस वक्त उनका एक फ्लैट कोई बंद था, जो इन्फॉर्मेशन मिली हम लोगों को उसमें एक मुताबिक एक फ्लैट बंद था, यानी एक फ्लैट में कोई नहीं रह रहा था, लेकिन एक फ्लैट में नेबर्स थे, यानी लोग थे। तो क्या सीबीआई ने उन नेबर से बात की कि कोई सुशांत का मूवमेंट ऑन 13, क्योंकि ये क्लेम है कि उसको घर तक छोड़ने गए, तो क्या, और ये भी कहा गया कि नेबर को पता है, तो फिर नेबर से क्या बात हुई? नेबर ने देखा क्या? गार्ड ने देखा जाते हुए और आते हुए? नेबर्स का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर को पता होता है कब बेल बजी, कब नहीं बजी, और खास करके तब अगर अगले दिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई तो नेबर इस बात को जरूर याद रखेगा, अरे कल ही तो आया था, एक दिन पहले ही तो आया था। और ये बात तो गार्ड को भी याद होगी, अरे ही डाइड, वो मर गया कैसे, कल ही तो आया था। ये तो नेचुरल रिएक्शन है विभाष, लोगों को पता होगा। आई एम कमिंग टू यू, आई विल आस्क डिटेल्ड क्वेश्चंस फ्रॉम यू। रिया चक्रवर्ती का फ्लैट के बारे में जैसे आपको बताया कि रिया चक्रवर्ती 101 में रहती हैं, जो बताया गया, और उसमें फ्लैट नंबर 102, 103 है। इनमें से कोई एक फ्लैट बंद था और दूसरा फ्लैट में लोग रह रहे थे। तो क्या तीनों फ्लैट के बारे में पता किया गया? आई एम श्योर सीबीआई ने जरूर किया होगा। क्या सुशांत सिंह राजपूत का कोई सामान वहां पड़ा हुआ था? अगर पड़ा हुआ था तो क्या था? कोई किसी तरह की कंप्लेन, कोई हिस्ट्री पुलिस के पास या किसी और के पास सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती को लेकर? क्योंकि रिया चक्रवर्ती के फादर वहां रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, वो उनका फ्लैट नहीं है, वो रेंट पे रहते हैं। और अब हम नहीं जानना चाहते हैं कि जिसकी इनकम 12 लाख 14 लाख होती है वो एक महीने में 1,20,000 का रेंट कैसे देता है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। इट्स अ 4 बेडरूम फ्लैट, 3 बेडरूम कन्वर्टेड इनटू अ 4 बेडरूम फ्लैट। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद फैमिली का रिएक्शन क्या था, ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो क्या रिएक्शन था नेबर्स, उनसे क्या सीबीआई ने बात की? क्या ये जानने की बात कोशिश की सीबीआई ने कि 1 जुलाई को रिया चक्रवर्ती का बर्थडे आता है, तो क्या रिया चक्रवर्ती ने इस बार बर्थडे मनाया अपने घर में या बाहर जाकर? रिया चक्रवर्ती का मूवमेंट 14 जून के बाद क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाउ नॉर्मल और एबनॉर्मल वाज रिया चक्रवर्ती? क्या रिया चक्रवर्ती ने बर्थडे मनाया या नहीं मनाया? रिया चक्रवर्ती ने नॉर्मल बिहेव किया या नहीं किया? एक आदमी जिसके बॉयफ्रेंड का डेथ हो जाए, वो शख्स या फियोंसे या लिव इन पार्टनर जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, वो एबनॉर्मल हो जाएगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये सीबीआई ने चेक किया है कि नहीं किया मुझे मालूम नहीं। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिया चक्रवर्ती लगातार 1 जून से लेकर 12 जून तक लगातार पिक्चर्स पोस्ट कर रही हैं, और 12 जून को उन्होंने जो पोस्ट किया है वो एक केक का पोस्ट किया है, और उस केक का पिक्चर जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के घर का दिखता है। अब इससे शक और बढ़ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया चक्रवर्ती आई थी 12 तारीख को। अब कोई क्लेम कर रहा है कि हाँ वो 13 तारीख को थी, तो फिर वो वीडियो, वो पिक्चर क्या है, पुराना है या नया है? तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती के घर से जुड़ते हैं। अब सवाल विभाष ये, पहली बात मैं आपसे गैजेट्स पे आऊं, कैसे सर्विलेंस पे, कैसे सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हैं, कार में क्या है, वो मैं बाद में बात करूंगा। पहले एक बेसिक सवाल है कि अगर ये बात सही है, अगर किसी बीजेपी के पॉलिटिशियन ने क्लेम किया है कि सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ने के लिए रिया चक्रवर्ती गए थे, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर आई थी। फिर वो केक का पिक्चर, वो फोन का स्विच ऑफ हो जाना, सुशांत सिंह राजपूत का जाना, और वो अगर गए थे तो वो 2 घंटे का विंडो मिला होगा, कम से कम उनको जाने और आने में, लौटने में कम से कम 1, 1.5, 2 घंटे लगे होंगे। तो वो तो सफिशिएंट टाइम था किसी को भी घर में आकर छुपना, घर में आकर चीजों को अरेंज करना, और जैसे ही सुशांत लौटे होंगे उनको मार दिया गया होगा। रिया चक्रवर्ती घर में थी या नहीं थी? हाउ डू वी नो? यस, गो अहेड. First of all, Sunil, in fact, I was seeing a lot of people are liking the new platform that we are on today. In fact, I can see tons of messages. आपके कुछ बहुत बड़े fans हैं. It seems there is one lady by the name Simran Kaur from Germany. She writes, "You look even more handsome, sir, and your T-shirt is your T-shirt is fantastic." A similar thing. I want to look pink. I become much younger today. Okay. So thank you so much. Thank you so much to all of you for praising and appreciating the platform. We hope that this works without any hitch or without any glitch.
let's complete the show and then review it. And then Vivash, if everyone agrees, then maybe we will move for 8 p.m. show on this platform. Yes, go ahead, Vivash. Sure, sure. So coming back to the scenario here, in fact, see, दो तीन चीजें हैं, Sunil. In fact, we have had this kind of a discussion in detail on this platform. I think 10th of September it was, if the date I remember is correct, on this aspect of finding out what's happening or what has happened in between the movement, rather, for Rhea between the 8th to the 14th. So 8th तक पता नहीं उसने जो किया नहीं किया. 8th is when she's supposed to have gone out. And even on the TV channel, the paid interview which she gave, it was asked to her, did you go? And she said no. She has not gone. बहुत बड़ी और एक बात है सुनील कि आप समझिए, जो एक पूरा का पूरा परिवार, it so happens that none of them went to see him after he passed away on 14th. At least after the news came out that he has passed away. Very, very shocking and surprising. This lady, accused number one, did not go. Rhea Chakravarti did not go. Souvik Chakravarti did not go. Rhea Chakravarti's father did not go. And Rhea Chakravarti's mother did not go. Absolutely. So that itself is shocking. जबकि कई सारे पोस्ट एंड कई सारे इनफैक्ट एविडेंसेस हैं जहां पर यह भी बताया गया है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती एज वेल एज संध्या चक्रवर्ती यूज्ड टू स्टे देयर फॉर क्वाइट सम टाइम. बाय स्टे आई मीन दे वर स्टेइंग देयर फॉर ओवरनाइट एज वेल. सो सरप्राइजिंग है कि आप एक 1.5 साल का ही, अगर मैं 1.25 साल का ही रिलेशन में पकड़ लूं, आप जिनके घर पे रह रहे हैं, जिनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, आप उसको देखने भी नहीं जाएंगे कि उस बंदे को हुआ क्या और क्यों हुआ. Why would you do that unless you are aware कि क्यों हुआ और कब हुआ? For all you know, coming back to this 13th night वाली कहानी, Sunil, there are hundreds of evidences which should be there. In fact, we discussed that the other day also. One would be Sushant's premises. जो 13th रात में उनके बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कैमरा, बाय दैट आई मीन उनके घर का सिक्योरिटी कैमरा था नहीं था, वी डू नॉट नो. बिल्डिंग में कैमरा थे, दैट इज समथिंग विच वी नो फॉर श्योर. बिल्डिंग के कैमरा है, दैट कुड हैव बीन चेक्ड. सेकेंड थिंग इज सिमिलर टू दैट, he went, if at all he went on the 13th night, 13th to 14th intervening night, if he went to drop the accused number one at her place, again cameras would have captured. See, I do not rely too much on people. You said gardeners honge, house help honge, security men hoga, lift men hoga, bahut se log honge, but they all can lie. Electronic evidences do not lie. That's what I come back again and again. I have said this earlier also, Sunil, and I am a big fan of electronic evidences because most of them cannot be tampered. CCTV, yes, it can be tampered. But if you remember, in fact, in one of the shows we did about 20 days back, we mentioned about the Maserati car that he has. The Maserati car. I will come to that. One second. Hang on, Vivash. We'll come to the car later on. First, let's stick to the camera, CCTV, one by one. CCTV footage, it is being said that the complex's CCTV was not working or is not working. At both the places, it can't be, Sunil. No? It was not working at Sushant's house as well as at Rhea's house. Yes. So and I am told that it was not working for some time. Now they are trying to retrieve, to get it corrected. I'm not sure, but I was told that Rhea Chakravarti's apartment CCTV cameras were not working. Is that possible? See, it looks more to be a part of a design then, you know. It looks more to be a part of design. It can't be a mere coincidence, Sunil, ki things do not work here, things do not work there. See, too many coincidences, I always keep saying, that's one of my favorite taglines. Too many coincidences are never coincidences, in fact. It's part of some sinister design then. It's part of some design, definitely. It can't be something which can be, you know, hushed just like that. See, okay, I can so let me just repeat. Just one second, Sunil. I can still understand the cameras not working at the accused number one's house, because that's not probably a very big hep society. None of the celebrities stay there. But the one where Sushant Singh Rajput was staying, he was a celebrity. How could you have a CCTV camera at his premise not working?
In fact, if I remember correctly, after about 1 month of his demise, the person who runs the CCTV at Sushant's residence, he came on one of the platforms, or he issued some statement that, the cameras were working and the footage has been given to Mumbai police. I will add on that, Vivash. I will add on that. We were told, हम लोग को बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के क्रिमेशन में कोई फुटेज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, लेकिन अभी 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद अचानक 3 वीडियो आता है। तीनों वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के क्रिमेशन के हैं। ये तीनों वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के क्रिमेशन में शूट किया गया। अगर इसको आने में 3-3.5 महीने लगे, अब इस बात की क्या गारंटी है विभाष कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और अगर था तो फुटेज को टैंपर नहीं किया गया, या सीसीटीवी कैमरा ही लेकर चले गए, या फुटेज ही लेकर चले गए, या किसी के पास वो फुटेज है और वो 2 महीने 3 महीने बाद फुटेज आ जाएगा, या हो सकता है सीबीआई के पास ऑलरेडी हो। वी डोंट नो, क्योंकि चीजें होती हैं। इसमें ये पॉसिबल है कि देयर इज अ फुटेज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत फ्लैट and that has captured everything. It's possible now because मुझे लगता है सब झूठ बोल रहे हैं। Either the CCTV camera has captured it, or it's possible that somebody has shot it. Somebody has shot somebody has shot the video. Possible, क्योंकि ऐसे जो criminal bent of mind के लोग होते हैं, वो अपने so called boss को दिखाने के लिए भी तो शूट करते हैं ना। They derive, in fact, they derive something called as a sadistic pleasure. किसी को आपको पेन में और तकलीफ में देख करके आपको खुशी होती है। Those are sadists. Those are people who derive sadistic pleasure. It's quite possible. It's quite possible that they may have a footage. 3 सोर्स हो सकते हैं, 3 सोर्स हो सकते हैं। एक सोर्स होता है, एक सोर्स वो है जो है मुंबई पुलिस, एक सोर्स है सीबीआई, और एक सोर्स है जिसने ये शूट किया होगा या जिसने उस फुटेज को निकाला होगा। इन 3 के पास किसी के पास भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर 3.5 महीने बाद हमको बताया जा रहा है कि फुटेज वीडियो रिकॉर्डिंग सुशांत के क्रिमेशन की हुई थी, और हम फुटेज को 3.5 महीने बाद देख रहे हैं, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है विभाष कि कुछ महीने बाद या कुछ दिन बाद अचानक एक वीडियो आएगा जो दिखाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा जा रहा है? ये गारंटी कैसे, इस बात की गारंटी कैसे होगी? बिल्कुल पॉसिबल है सुनील, एंड if I may say so, you never know. For all of us, we may be surprised. CBI may have something like that. Probably that is the trigger. That is the trigger why the whole case is turned upside down. That's also possible. It's possible. It's possible. Absolutely possible. क्योंकि CBI इतने दिन तक चुप है। Anything is possible. Anything is possible now. हमको किसी पे यकीन ही नहीं है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। Absolutely. इस केस में सुनील खास करके so many things have changed. The entire narrative has changed from a suicide to now what it looks like to be a cold-blooded murder. So in 3.5 months, if that can turn around, anything can. Okay. If the accused number 1 says, I did not meet Sushant at all after the 8th, suddenly it comes out that probably they met on the 13th, 14th intervening night. How do you then believe anything? Another thing, also it's possible. See, the Republic TV timing, what they are mentioning, probably, we do not subscribe to the timing of 3 a.m. on intervening night of 13th and 14th, which means 3 a.m. on 14th, the car was seen, is what they are saying. Car could have been seen after he was murdered, and the car was driven by somebody to drop the accused number 1. The GPS tracking on the car will show that the car went there. That could also be, Vivash, that could also be an alibi. Absolutely. It can be an alibi which can be created because Sushant Singh Rajput's car is something which is not too many people in Mumbai have. Maseratis are very, very far and few. So I do not know if you may have not more than 3 or 4 or 5 people in Mumbai driving a Maserati. So those cars can be identified by people. For all you know, somebody has said that the car was seen is what has been mentioned. Nobody is mentioning that they have seen both these two in the car or coming out of the car. Okay. The car could have been. Since you have talked about the murder, let me just tell the viewers, a lot of viewers have joined now. Let me just tell them what has happened today.
three things have happened, and all three things are very important. I am discussing one topic right now. Other two topics we'll be discussing during Speak Up India at 10 p.m. Number one, Republic TV has claimed, quoting sources, that there is a move by CBI to add section 302 in the FIR. Now, what does it mean? It means that सुशांत सिंह राजपूत was murdered. That's what it means. यानी सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया, मार डाला गया, यानी उसका खून कर दिया गया. वो कोई आत्महत्या नहीं थी, बल्कि वो हत्या थी. और ये बात सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो एफआईआर फाइल किया है फैमिली ने, जो ट्रांसफर हुआ सीबीआई को, सीबीआई उस एफआईआर में अब 302 सेक्शन को ऐड कर रही है. अगर 302 सेक्शन ऐड हो जाता है तो ये केस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का नहीं होगा. ऑफिशियली ये केस बन जाएगा मर्डर का. मर्डर केस, एब्सोल्युटली. What we are waiting for, we discussed it in the afternoon also, we will discuss again in the Speak Up India. But अब ये अगर हो गया तो एक चीज बहुत साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जितने सवाल हम लोग 13-14 जून से पूछ रहे हैं, 14 जून से पूछ रहे हैं या 16 जून से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, वो तो जवाब मिल जाएगा. लेकिन सवाल फिर भी बना रहेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के पीछे कारण क्या है, कैसे, क्यों मारा गया और किसने मारा, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा. लेकिन इसका ऐड होना ये कंफर्म तब होगा विभाष, जब सीबीआई ऑफिशियली आके बोले कि सुशांत सिंह राजपूत केस में वी आर पुटिंग सेक्शन 302. बिकॉज इफ सीबीआई सेज दैट ऑन रिकॉर्ड, तब कोई डाउट नहीं होगा दैट सुशांत सिंह राजपूत was murdered, and that's exactly what we are waiting for. We are waiting Absolutely. for a declaration that CBI says that Sushant Singh Rajput was murdered, and hence we are adding section 302. That's the first development. Second development, which sort of justifies it and substantiates it, is the decision to record the statement of Siddharth Pithani and Neeraj Singh before a magistrate. Now, absolutely. सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी. व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी ने मैजिस्ट्रेट के सामने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी का या नीरज सिंह का, तो वो डिनाई नहीं हो सकता कोर्ट ऑफ लॉ में. मतलब कोर्ट के दौरान, ट्रायल के दौरान वो डिनाई नहीं कर सकते. लेकिन उसमें दो चीजें हो सकती है. एक तो ये स्टेटमेंट तब रिकॉर्ड कराएगा कोई विभाष जब सिद्धार्थ पिठानी और नीरज में से दोनों या एक, या ऑब्वियसली दोनों या एक, ये कहना चाह रहे हैं कि हम मर्डरर हैं, हमने किया था, इट्स अ कन्फेशनल स्टेटमेंट, हमने किया था और हम कन्फेस कर रहे हैं. Correct. ये हो सकता है एक कि कोई आदमी अपने क्राइम को कन्फेस कर रहा है मैजिस्ट्रेट के सामने, ये हो सकता है. Correct. दोनों या एक, या फिर दोनों या एक ये भी कह सकते हैं कि हम ये हुआ था, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ऐसे ऐसे हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हुआ और हम सरकारी गवाह बनने को तैयार है, यानी अप्रूवर बनने को तैयार है. सीबीआई के पास एक की विटनेसेस मिल जाएंगे जो बता देंगे कि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के घर में कौन आया था. विवाद इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है. एक पुराना सिद्धार्थ पिठानी का एक स्टेटमेंट मैंने सुना, जो अगेन रिपब्लिक टीवी के कैमरा पे है, जिसमें वो कहता है कि उससे पूछते हैं कि क्या घर में लोग आए थे, उसने कहा था जो भी लोग आए थे मैंने सीबीआई को बता दिया. डिनाई नहीं करता, ये करीबन 20-25 यानी 20-25 दिन पहले की शायद वीडियो है ये. कुछ लोग तो आए पहले की वीडियो, वो कौन लोग थे. और थर्ड डेवलपमेंट है जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो है रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड, कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की मुलाकात 13 तारीख को हुई थी. अब 12 तारीख को रिया चक्रवर्ती उनके घर गई या 13 को गई, वन डजंट नो, बट रिया चक्रवर्ती को वापस उनके घर छोड़ने के लिए सुशांत सिंह राजपूत 13 तारीख के शाम यानी रात में गए थे. वो टाइम कोई भी हो सकता है, टाइम को लेकर स्पेसिफिक लोग नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि वो छोड़ने के लिए गए थे. ये 3 मेजर डेवलपमेंट्स आज के हैं जो इन केसेस से. चौथा एक और डेवलपमेंट है, रिलेटेड है बट इससे डायरेक्टली नहीं है, दैट इज पायल घोष वाला डेवलपमेंट, जिन्होंने कंप्लेन किया है अगेंस्ट अनुराग कश्यप. ये मैं पिकअप इंडिया के दौरान मैं उसके डिटेल्स दूंगा. अभी सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड ये 3 डेवलपमेंट थे और तीनों इतने इंपॉर्टेंट थे कि मुझे ये 6 दिन का जो मैंने डिसीजन लिया था टू बी क्वाइट, वो तोड़ना पड़ा और मैं आपके सामने हूं. विभाष, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक है सीसीटीवी कैमरा,
उसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के कैंपस का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा या नहीं कर रहा था। अब ये तो मुंबई पुलिस जानती है और सीबीआई जानती है कि वो कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो वो सीसीटीवी फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके फुटेज कैसे डिलीट किया जा सकता है, कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, आप बता चुके हैं। अगर मान लीजिए सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गया है तो फिर कैसे पता करें कि सुशांत सिंह राजपूत गए थे या नहीं गए थे? See, first and foremost is CCTV at both the locations. Let's assume the worst कि दोनों भी नहीं है या दोनों भी टैंपर किए जा चुके हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है कि then we have to look at an option. सुशांत का फोन was it traveling with him? सुशांत का फोन तो ट्रैवल कर ही नहीं सकता था विभाष, क्योंकि वो बंद था। वो कुछ न फोन रिसीव कर रहा था और ना उसने कॉल किया। अब फिर एक और चीज बच जाता है कि अगर इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट द एक्यूज नंबर 1 केम टू सुशांत हाउस ऑन 13th evening, afternoon, night, whatever, then she could not have switched her phone off and traveled. Yes. Or 12th, Vivash. She could have also come on 12th. Pardon me? She could have also come on the 12th. Possible. After Me Too दीदी went off. केक वाला पिक्चर है ना, केक वाला। अब वो 12th का है कि 13th का है मुझे नहीं पता है बराबर से। पोस्ट किया गया है 12th को। 12th नाइट का है। Yes. पता नहीं अब 12th, neither 12th nor 13th of June किसी का बर्थडे तो है नहीं, तो किस चीज का केक कटवा रही थी वो मुझे नहीं पता। इनफैक्ट I do not know that, but that apart, also what needs to be looked at by the investigating authorities is not only the phone records और हिंदी भी मिक्स कीजिएगा, अपने इंग्लिश में हिंदी भी मिक्स। ठीक है, सिर्फ एक्यूज नंबर 1 के ही मोबाइल डेटा को या डंप डेटा को नहीं देखना चाहिए, उनके घर में जितने और लोग थे उन सब के डंप डेटा को देखना चाहिए। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अगर वो इतनी शातिर दिमागी है, वो खुद अपना फोन नहीं लाई होगी या खुद अपना फोन बंद करके आई होगी, बट शी वुड हैव डेफिनेटली कैरिड सम फोन टू रिमेन इन टच. Okay. Which was the phone which traveled from that location to that? See, we discussed that. अगर हमारे पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये मोबाइल नंबर कहां कहां ट्रैक हुआ। अगर मोबाइल नंबर नहीं भी है, एक टावर लोकेशन पे एंटायर डंप ऑफ 3 ही ऑपरेटर हैं। अगर आपको याद होगा मैंने बताया। एक चीज मुझे बताइए, रिया चक्रवर्ती किसी और का फोन ले जाती है, हाइपोथेटिकली, ओके, करेक्ट। सुशांत सिंह राजपूत किसी और का फोन ले जाते हैं, लेकिन मूवमेंट होता है सुशांत सिंह राजपूत के घर से रिया चक्रवर्ती के घर, एक्यूज नंबर 1 के घर तक। एब्सोल्युटली। तो अगर कोई फोन भी दूसरा भी है तो क्या उस एरिया में जो फोन ट्रैवल हुआ है उसका तो ट्रैक किया जा सकता होगा, राइट? ट्रैक कर सकते हैं, मैं वही बता रहा हूं आपको। 3 ही ऑपरेटर हैं आज की तारीख में, 3 ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं मुंबई में। एक है वोडाफोन आइडिया, एक है एयरटेल और तीसरा है जियो। अगर इन 3 के अलावा तो कोई सैटेलाइट फोन लेकर के तो मुझे नहीं लगता है कोई चलेगा कि जिसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। सो इट हैज टू बी अ मोबाइल फोन. So either of these 3 operators, you ask for a dump data between location Bandra, Mobla to wherever this lady stays. Easily you will get a lot of dump for 13th and 14th. Yeah, you could probably ask for 12th to 14th and see how many people travel from here to there. Not many people will travel from point A to point B. And if there are many people who have traveled, you investigate and find out, interrogate all of them who have traveled between location A to B. दूध का दूध, पानी का पानी. It's not very difficult at all to track. Apart from the fact, as I said, the car has a GPS tracking device. The car is a very advanced car he has. But that is possible कि उसको एक alibi के तौर पे create किया गया हो. अगर 13th रात 3 बजे का जो समय बताया जा रहा है, 3 early morning, that is quite possibly. नहीं, वो टाइम को लेकर they are not very specific. अच्छा, they are not. Time could vary from 2:22 p.m. Vivash, 2:22 p.m. onwards, his phone was switched off. It could be any time after that. Especially in the evening. Specifically late evening. So whatever be the time, it's easily possible to track. उन सब के अलावा, Sunil, most of the people forget that mobile phones, even if आप उसको इंटरमिटेंट ऑन करेंगे या आप लोकेशन ए टू लोकेशन बी ऑन करेंगे, आज की तारीख में हर कोई गूगल यूज करता है और हर किसी का जीमेल अकाउंट उस पर सिंक्ड होता है. गूगल ट्रैक्स यू, आप कहां कहां गए हैं, नहीं गए हैं.
अगर आपको याद होगा, अगर आप फोन लेकर के ट्रैवल करें फ्रॉम लोकेशन A to B, लेट्स से यू गो टू सम मॉल, you go to some shop, you will get a pop-up. How was the experience at this shop? How was this particular shop? How was this mall? So how does Google know that? Because Google is tracking you if your location You services were are asking on. Vivash, that whose birthday was on 12th and 13th. Now she Correct. posted a picture on the 12th. Now this picture of with a cake could be old picture, could be new picture. I don't know. Maybe she was posting an old picture shot at Sushant's place, but it is clearly has to be linked to somebody because 12 तारीख को कोई केक का पिक्चर ऐसे तो लगाएगा नहीं. सुशांत का बर्थडे था नहीं, रिया चक्रवर्ती का अपना बर्थडे तो था नहीं, तो कोई तो ऐसा शख्स था जिसका बर्थडे या तो 12th को आ रहा था या 13th को आ रहा था. और 8th को, माइंड इट, कीप इट इन माइंड, 8th को रिया चक्रवर्ती घर छोड़ के जा चुकी थी. उनके मुताबिक उनका रिलेशनशिप सुशांत सिंह राजपूत के साथ खत्म हो गया था. तो अगर खत्म हो गया था, उनका कोई लेना देना नहीं था, तो फिर वो केक तो किसी ऐसे आदमी के लिए दिया हो के लिए वो पिक्चर भेजा गया होगा जिसको वो कन्वे करना चाहती थी. 13th को बाय चांस कोइंसिडेंटली एक ऐसे शख्स का नाम आता है या ऐसे शख्स का बर्थडे है, बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, जिस शख्स का नाम या जिस शख्स को लेकर कई सारी डिस्कशन इस केस में हुई है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर हो, लेकिन उसको लेकर डिस्कशन इस केस में कई बार कई लोगों ने किया है. तो ऐसा नहीं है कि 13th को किसी का बर्थडे नहीं था, किसी का रेलेवेंट आदमी जिसका नाम इस केस से लिंक किया जा रहा है उसका था. सुनील, आप बर्थडे किसका मनाते हैं? जो कोई आपका फैमिली मेंबर है या कोई जो आपके करीब है? अब इसके फैमिली मेंबर में देख लिया जाए कि किसी का बर्थडे है 12th या 13th का कि नहीं. मैंने बता दिया आपको, मैंने 13th को बता दिया किसका बर्थडे है. समवन हु इज लिंक्ड टू द केस जिसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, उसका बर्थडे बता रहे हैं. ये क्यों काटेगी? उसका केक इसको क्यों काटना चाहिए? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा. अनलेस देयर इज सम लिंकेज, अदरवाइज इसको केक काटने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है. पिक्चर पोस्ट करने की क्या जरूरत है? एब्सोल्युटली. पिक्चर आप क्यों काटेंगे? अब केक क्यों काटेंगे? सबसे पहले पिक्चर पोस्ट तो बाद में करेंगे. आप केक काटेंगे क्यों? और वैसे पिक्चर को क्यों आप क्लिक करेंगे और पोस्ट करेंगे? ये भी कहा जाता है विभाष की केक ऑर्डर कराया गया था, केक पहुंचाया गया है. ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमको पता है कि केक ऑर्डर किया गया है, केक पहुंचाया गया. कितना सच कितना झूठ हम नहीं जानते, लेकिन तो नहीं पता. अब तो मेरा यकीन ही उठ गया ना, क्योंकि अगर 3.5 महीने बाद उसके क्रीमेशन का वीडियो आ गया विभाष, तो कुछ भी आ सकता है. कुछ भी आ सकता है. As you rightly said, you never know if somebody or CBI has some video of him getting killed, possible, of him either entering or killers entering his house on 13th or 14th, whichever night that was. Possible. Anything is possible. इस केस में इतने सारे चेंजेस हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन विभाष, you were talking about the car, we were talking about gadgets. चलिए ठीक है, सीसीटीवी कैमरा भी खराब था, उन्होंने कोई फोन कैरी नहीं किया, सुशांत सिंह राजपूत किसी मजबूरी में कैरी नहीं किया, और रिया चक्रवर्ती ने जानबूझ के कैरी नहीं किया ताकि ट्रेस नहीं हो, मान लेते हैं. तो फिर वो कार तो है ना सुशांत की, और आप उसके गैजेट्स के बारे में बात कर रहे थे, वो क्या है? व्हाट इज द कार, और कार से कैसे पता चले? सो मैं जो बताने जा रहा था सुनील जी, इनफैक्ट ये ऐसा है कि ही यूज्ड टू ड्राइव अ मसराटी, जो कि उसका काफी प्यारा गाड़ी है, काफी फेवरेट कार था. मतलब ही यूज्ड टू रियली इनफैक्ट ड्रीम करता था वो बचपन में. अपने पास में एक मिनिएचर बना करके रखा हुआ था उसके पास में, टॉय टाइप, कि ही वांटेड टू ऑलवेज ओन दिस कार. सो दिस कार इज वेरी वेरी एडवांस्ड. इट हैज जीपीएस ट्रैकिंग. जीपीएस ट्रैकिंग से क्या होता है सुनील, कि आप उस गाड़ी को लेकर, एंड आई एम टोल्ड 2017 की गाड़ी है, 2017 अप्रैल की गाड़ी है ये, तो उन 3 वर्षों में ये गाड़ी कहां कहां गई है, एवरीथिंग गेट्स ट्रैक्ड. ऑल्सो if the car has a dash camera, a dash cam, what is called, which most of the countries in Europe and US, Canada, all these places, people have a dash cam. अगर वो dash cam है, इसमें dash cams mainly use होते हैं radar gun check को डिटेक्ट करने के लिए, ओवर स्पीडिंग के लिए, या some accident हुआ, कुछ हुआ तो उसको ट्रैक करने के लिए कि किसका फॉल्ट था नहीं था. Lot of people, what they do is they have this particular GPS tracker on this particular car and a mobile SIM on this car, which relays this entire live recording onto a cloud. So please understand what is the kind of valuable data
that this car can throw. In fact, if you remember last time also we did the show, I said, if the family still, you said family probably has the car in Faridabad. I mentioned, in fact, these people should, I hope so, possibly by now they have gone to the technical team of Maserati and have taken the dump data of the GPS car tracking. नहीं विवास, I do आप not know whether फैमिली they have को ना been- क्लियरली बोल दीजिए, फैमिली देख रही है शो, आप फैमिली को बोलिए और फैमिली करेगी। जब तक बोलते नहीं है तो फैमिली भी सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि फैमिली को बहुत चीजों का अंदाज नहीं। आप बताइए उनको कि उनके कार में फीचर है, आप प्लीज चेक करवाइए। एब्सोल्युटली, ये मैंने सुनील पिछले बार भी जब हमने करीबन 20 दिन पहले बात किया था, मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर बोलता हूं, अगर कोई ये सुन रहा है, उनको इस कार का जीपीएस डेटा ट्रैक करना चाहिए। काफी सारी चीजें उससे समझ में आएंगी कि ये कार कहां कहां गई थी। पॉसिबल है कि हर बार शायद सुशांत गया हो, नहीं गया हो, लेकिन काफी मूवमेंट्स का पता चल जाएगा। एंड बाय चांस अगर वो डैश कैमरा है connected to a cloud, then you would have photographic, videographic evidence, which will be immense, जिसको कि कोई डिनाई नहीं कर सकता, और शायद किसी ने उसको टच नहीं किया है अभी तक। अगर कार आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी उनके फैमिली के कस्टडी में है, which I presume and assume that after he passing away, they have taken the car away, that is something which will be immense, valuable, very valuable data, जिसको कि आप सोच नहीं सकते कितना वैल्यूएबल डेटा निकल के आ सकता है उससे। That's something which I would urge the family members, if any of them can relay this message to them, or if somebody is listening to this particular episode, they should look at this. CBI, I don't know whether CBI has done that, but if CBI hasn't, they should get electronic experts and also auto experts, call the people who can deal with Maserati, and they should go and check the car. If Absolutely. CBI people have not done it yet. Absolutely. It's high time they do that. Because I'm not sure. Maybe they have already done it. Because they may have already done it. But if they have not, they should. Possibly they have done it. If they have not, high time they do it. तो मुझे लगता है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कार का इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार से जो डेटा है, आप उसको डेटा डंप लीजिए, उसको आप एसेस कीजिए एंड सी व्हाट बेस्ट कैन यू डू विद दैट। आपको क्या कुछ मिलता है, क्या पिक्चर्स मिलते हैं, क्या रिया चक्रवर्ती को छोड़ने सुशांत गए थे उस कार से, क्या रिया चक्रवर्ती का चेहरा दिखता है उसमें, क्या अंदर वाले किसी भी गैजेट से बातचीत रिकॉर्ड हुई है, क्या बातचीत हुई उन लोगों के बीच, बहुत सारी चीजें जो कार के डेटा से पता चल सकती है। सेकंड चीज, सीबीआई शुड आल्सो हैव अ रीलुक एट रिया चक्रवर्तीज हाउस, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ये आपने कहा है, ये आपने काफी डिटेल्ड शो किया था सुनील, इनफैक्ट मुझे याद है अच्छी तरह से, और उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि आप उसका क्यों सोच रहे हैं, वहां पे क्या शायद निकल के आएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, किसी ने शायद सोचा नहीं था। आई मीन हैट्स ऑफ टू यू हैड दैट काइंड ऑफ आइडिया कि शायद ये गई है बीच में यहां से सुशांत के घर पे। दैट ऑल्सो गेट्स एक्सपोज्ड, ऑल हर लाइज आर कमिंग आउट, सुनील। इनफैक्ट व्हाटएवर शी हैज सेड is all a blatant lie. शायद एक भी ऐसा चीज नहीं है जो उसने कहा और वो उल्टा नहीं पड़ रहा है। उसने कहा सुशांत को डिप्रेशन था, उल्टा पड़ गया। उसने कहा सुशांत वाज अ ड्रगी, उल्टा पड़ गया। उसने कहा कि मैं सुशांत के घर से 8 तारीख के बाद में उसको मिली नहीं, उल्टा पड़ गया। उसने कहा मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, उल्टा पड़ गया। मतलब जो चीज उसने कहा है, एवरीथिंग इज टर्निंग ऑन इट्स हेड। उसने कहा कि मैं तो गई नहीं थी मॉर्चुरी में। करेक्ट, उसने ये भी कहा। वीडियो फुटेज आ गया। She can't lie and run away. रिया चक्रवर्ती ने कहा ये सुसाइड है, और ये तो पोस्टमार्टम से ही प्रूव हो गया है, लेकिन उन्होंने ही क्लियर कर दिया कि पोस्टमार्टम रात में नहीं सुबह हुआ था। We discussed that as well. So for all you know, you never know. विसरा सैंपल किसका दिया गया था, मर्डर सुशांत का हुआ, पोस्टमार्टम किसका हुआ, कुछ नहीं पता है। इस केस में बहुत गोलमोल है, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल है। बट इस केस को आई एम टेलिंग यू, इट विल बी रिटन इन गोल्डन लेटर्स इफ सीबीआई क्रैक्स दिस। It'll go down in history, Sunil. Please mark my words. This will go down in history of CBI. It will be written in golden letters. In fact, of course, as fans, we will all be elated. We will all be happy
but it will go पहला down केस है as a feather in the cap of CBI. विभाष, ये पहला केस है जिस केस में पहले दिन ओपन एंड शट केस ऑफ सुसाइड था, Of suicide, yeah. राइट? यही बताया गया था। Absolutely. फैंस खड़े हो गए, हमारे ऐसे लोग आ गए। आज ये अगर रिपब्लिक की बात सही है, इंफॉर्मेशन की करेक्ट है, तो ये ओपन और शट केस ऑफ मर्डर है। ऐसा कैसे होता है कि जहां पर एक केस सुसाइड से मर्डर बन जाता है? यानी आप इस देश में अगर लोग खड़े होने लगे तो कितने सारे सुसाइड मर्डर बनेंगे, आप सोचिए एक मिनट के लिए। सुनील, आपको अगर याद होगा, जब मैं शायद शुरू में जुलाई में जब आपसे जुड़ा था, मैंने कहा था कि इस केस में टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, which is what probably CBI seems to have looked at this time, because उनके पास और कुछ था नहीं. They didn't even have the body. They didn't even have the viscera samples. I am told is only 20% of the viscera sample, because उसके बाकी का जो viscera sample था उसको CFSL कलीना ने यूज कर लिया उनके टेस्टिंग के लिए. What they had was only 20% of the viscera sample. आप सोचिए, hats off. I mean, you know, if AIIMS comes out with a homicide angle in their findings, hats off to the doctors at AIIMS as well. Hats off to Dr. Sudhir Gupta for this particular case. So there are so many people who need to be thanked, in fact, apart from guys like you, guys like Arnab. उनको कोटि नमन है, उनको कोटि नमन है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इस केस में। कहां से लोगों ने ढूंढ कर डेटा लेकर के आए हैं, कहां से ढूंढ करके लाए हैं। विभाष, टेल मी वन थिंग, अगर ये बात अब सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती केम टू सुशांत हाउस एंड सुशांत वेंट टू ड्रॉप हर, अगर यही बात मान लेते हैं कि अगर ये बात सही है, अभी तो ये किसी ने स्टेटमेंट दिया है, वी डोंट नो, सीबीआई विल कम एंड ऑफिशियली टेल अस कि क्या ये सही है, गलत है, जो भी है। लेकिन अगर ये प्रूव हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत का क्या डेथ मर्डर है, सीबीआई ने ऑफिशियली बोल दिया ये मर्डर है, और रिया चक्रवर्ती जो इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है, फैमिली ने जो केस डाला है, जो एफआईआर डाला है, उसमें नंबर 1 रिस्पोंडेंट रिया चक्रवर्ती है, नंबर 1। करेक्ट। आज के टाइम में सस्पेक्ट नंबर 1 रिया चक्रवर्ती है। अगर 302 जुड़ जाता है, नंबर 1, और नंबर 2, अगर ये प्रूव हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती 12 तारीख को या 13 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के घर में आई थी, और ऐसा प्रूव होता है कि सुशांत सिंह राजपूत की गाड़ी रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर देखे ही गई, अब चाहे रिया सुशांत सिंह राजपूत छोड़ने गए या कोई और थे या नहीं थे, अलग बात है, उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर वो गाड़ी वहां पहुंच गई तो फिर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केवल कॉन्स्पिरेसी का केस नहीं बनेगा विभाष, वो बहुत सीरियस हो जाएगा। She will be gone for a long time. She will be gone for a long time. I just hope and wish कि इंफॉर्मेशन गलत है, because रिया चक्रवर्ती ultimately is a woman and a middle class person, वरना हम लोग को कहा जाएगा कि we were running a media trial, we are anti-women. Sunil, so there is no feminism or patriarchy or anything that we need to talk about. An accused is an accused, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, अगर आपने गुनाह किया है तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सिंपल एज दैट। विभाष, आंसर दिस, हाउ सीरियस विल इट बिकम फॉर हर इफ इट इज प्रूव्ड दैट रिया चक्रवर्ती वेंट टू सुशांत सिंह राजपूत हाउस आफ्टर मीतू सिंह हैड लेफ्ट? मीतू सिंह लेफ्ट अराउंड 4 o'clock और 5 o'clock ऑन द 12th। अगर ये प्रूव हो गया कि उसके बाद और सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बीच रिया चक्रवर्ती चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे 24 घंटे के लिए या पूरे दिन के लिए सुशांत सिंह राजपूत के घर एंड पिठानी ये क्या स्टेटमेंट देते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 164, दैट इज 1, वो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताते हैं, या पूरा मॉडस ऑपरेंडाई बताते हैं, या पूरी स्टोरी का बताते हैं, उसमें एक्यूज नंबर 1 का इन्वॉल्वमेंट कितना है? दैट इज फर्स्ट। Second nail in her end of the story, I would say. Don't use that word. I did not. I did not want to use that word, and that's the reason I stopped. The second nail would be CBI putting a 302 clause. Okay.
Okay. Third would be a corroborative evidence or a data suggesting her movement from Sushant Singh Rajput's house on the 13th and 14th intervening night to her place, with or without Sushant in the car. अभी तक क्या था, मैं बताता हूँ मैंने सवाल क्यों पूछा, अभी तक ऐसा लग रहा था विभाष, अभी तक ऐसा लग रहा था कि अगर रिया चक्रवर्ती 8 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के घर से चली गई 8th of June, ओके, उन्होंने 9th को फोन ब्लॉक कर दिया, उसके बाद वो सुशांत सिंह राजपूत के घर नहीं आई। अगर ऐसा था, अगर ऐसा होता तो एट बेस्ट सीबीआई उनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी का केस कर सकती थी और बीइंग इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन अगर रिया चक्रवर्ती 12-13 तारीख को चली गई तो सवाल ये आएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि जब सुशांत सिंह राजपूत को मारा जा रहा था तो रिया चक्रवर्ती वहां प्रेजेंट नहीं थी? इस बात की क्या गारंटी? मैं वही बोल रहा हूं सुनील, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पूरी कहानी खत्म होने के बाद सुशांत की कार को लेकर के उसको छोड़ने के लिए किसी ने ड्राइव करके वहां तक गया था। दैट्स क्वाइट पॉसिबल, जस्ट टू क्रिएट एन एलिबी, ताकि दुनिया को लगे कि सुशांत ही छोड़ने आया था। करेक्ट, दैट इज आल्सो पॉसिबल, दैट इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन फिर वो 12 बजे के फोन कॉल का क्या होगा? सी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है सुनील जी, इनफैक्ट उसके हिसाब से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि सुशांत वाज अलाइव दैट लेट ऑन। ये पॉसिबल हो सकता है ना विभाष, ये पॉसिबल हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती केम टू सुशांत हाउस से ऑन द 12th इवनिंग आफ्टर शी केम टू नो कि मीतू सिंह चली गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक वो है। फोन वोन लेकर नहीं आई, सबको बता दिया, कोई बताने की जरूरत नहीं है। शी स्टेड, सुशांत वाज मर्डर्ड आफ्टर दैट और बिफोर दैट। ये पॉसिबिलिटी है, हम लोगों ने जब डिस्कस किया था हमने कहा था कि ये पॉसिबिलिटी है और ये देखना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत आखिरी बार कब गया था। अगर मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत इस पीरियड में, जैसा क्लेम कर रहे हैं, 2:22 पे उसका फोन कॉल आखिरी आया, उसके बाद उसका फोन बंद था, अब इसके बाद कोई भी 1-2 घंटे का पीरियड ऐसा है जब सुशांत रिया को छोड़ने खुद गए थे, मान लो खुद गए थे, एंड दैट वाज सफिशिएंट एन इंडिकेशन कि रिया को हो सकता है जिसने भेजा हो, वो भेजा इसीलिए हो कि 2 घंटे के लिए उसको घर से निकालो। अगर वो तुमको छोड़ने जाएगा तो 2 घंटे उसके घर पे कोई नहीं होगा, उस टाइम हर चीज अरेंज की जा सकती है। ये भी तो हो सकता है कि प्लान रिया चक्रवर्ती वेरी मच पॉसिबल, एज पार्ट ऑफ प्लान सुशांत सिंह राजपूत को फ्लैट से निकाला गया हो रिया चक्रवर्ती को छोड़ने के लिए, नेचुरली वो गए हो और उस दौरान फ्लैट में सारे अरेंजमेंट कर दिए गए। जब सुशांत वापस आया, द स्टोरी वाज ऑल डन एज पर द स्क्रिप्ट। ये पॉसिबल हो सकता है। आफ्टरनून में, आज जब दोपहर में हमने डिस्कस किया था सुनील, इनफैक्ट हमने इस चीज का भी जिक्र किया था, हमने ये मेंशन किया था कि शायद अगर वैसा हुआ है तो ये पूरा प्लान करने के लिए और उन लोगों को उनके घर पर सुशांत के आने के पहले अंदर पहुंचाने के लिए भी किया गया हो सकता है। इन विच केस अगेन द एक्यूज नंबर 1 इज अ पार्टी टू द होल स्टोरी। मर्डर प्लान एब्सोल्युटली, which means she is aware. दो ही पॉसिबिलिटी है ना विभाष, दो ही पॉसिबिलिटी है। If Sushant was murdered, the windows are two. One is 2:22 to 10:30. वो 2:22 10:30 में अगर ये बात इनकॉर्पोरेट कर दें कि जो बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती गई थी, मान लो अगर गई थी और हम मान लेते हैं कि 2:22 और 10:30 के बीच ही मर्डर हुआ है, तो फिर रिया चक्रवर्ती शाम को अगर गई तो 6 बजे अंधेरा हुआ होगा या 6:30 बजे अंधेरा हुआ होगा। उस बीच पीरियड से लेकर 9 बजे के बीच या 9:30 बजे के बीच सुशांत उनको छोड़ने के लिए गए होंगे और आए होंगे। ये 1-1.5-2 घंटा जो है, इसमें जो भी इंतजाम करना था वो कर दिया गया होगा। उसके बाद जैसे ही सुशांत आए होंगे वहां फाइट हुई होगी और सुशांत को मार दिया गया। ये एक विंडो का कहानी। दूसरी विंडो के मुताबिक हो सकता है सुशांत छोड़ने गए हो, उस दौरान जो लोग भी आए हों उन्होंने जो कुछ भी अरेंज करना था उन्होंने किया हो और सुशांत के आने से पहले वो लोग निकल गए हो। और सुशांत जब सो गए रात में या अर्ली मॉर्निंग, वो अर्ली मॉर्निंग जब नीरज या
नीरज नीरज ही ले जाता था पेट को घुमाने। पानी वाली कहानी। नहीं, नीरज जी पेट को घुमाने देता। जब नीरज आ रहा था उस टाइम सुशांत सो रहे थे, उस टाइम वो लोग फिर आए हो और फिर उसके बाद जो कहानी हुई हो वो 9:30 से लेके 1:30 की 1:45 की जो विंडो है उसमें हुई हो। लेकिन अगर मर्डर है तो फिर पहले रात का जो विंडो है वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है मुझे, ऐसा लगता है। करेक्ट। सी प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप मर्डरर्स के माइंडसेट को समझें तो कोई एक साइट पर बार बार जाना नहीं चाहेगा जहां पर कोई क्राइम होने जा रहा है या हुआ हो। दे वुड नॉट टेक दैट काइंड ऑफ अ चांस टू गो देयर अगेन एंड अगेन कि वो 13 तारीख की रात भी गए, क्या सेट करने जाएंगे? अगर उन्होंने मारा ही है उस डॉग के फज के लीश को लेकर के, पट्टे को लेकर के, तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है उनको? जो भी 2 या 4 या 5 या 6 या जितने भी लोग आए हों, पता नहीं कितने, बट अगर वो विंडो था उनके पास घंटे भर का, 45 मिनट का, अगर मैं कम से कम समझूं, बिकॉज लॉकडाउन था, जो डिस्टेंस है बिटवीन बैंड्रा टू दिस इज नॉट बिग। नहीं हो सकता कोई आदमी अपने गर्लफ्रेंड को जिसके साथ झगड़ा हुआ हो उसको छोड़ने आ रहा है, 45 मिनट में कैसे आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर ये सोच करके चलें कि भाई जो भी टाइम दे वांटेड टू स्पेंड दे डिड दैट इन द हाउस, सुशांत सिर्फ उसको ड्रॉप करने गया और वापस आ गया। ओके, अब एक और सिनेरियो मैं पूछ रहा हूँ विभाष। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो बीजेपी की लीडर या बाकी लोग जो कह रहे हैं वो सही है ना, और दूसरी पॉसिबिलिटी की गलत है। यही तो पॉसिबिलिटी है, या तो रिया चक्रवर्ती आई या रिया चक्रवर्ती नहीं आई। अगर आई तो क्या सीबीआई ने ये इन्वेस्टिगेट नहीं किया होगा? सी अगर मैं समझू, मैं अगर मान भी लूं 1 मिनट के लिए कि आज कोई विवेकानंद गुप्ता है, इफ आई रिमेंबर हिज नेम करेक्टली, कि जो एक लीडर है बीजेपी के, उन्होंने ये क्लेम किया है कि भाई ही हैज सम इन्फॉर्मेशन। मुंबई के शायद जनरल सेक्रेटरी हैं, आई थिंक ही सम अथॉरिटी इन मुंबई। बट अगर मैं मान के भी चलूं कि वो इंफॉर्मेशन भी उनकी गलत है, सीबीआई का केस में 302 लेकर के आना itself is a big thing, and coupled to that is the information that Neeraj and Pithani are supposed to give a statement under oath in front of a magistrate, which will be admissible in law. These two things also are enough to suggest कि चीजें वैसी नहीं है जैसी दिखाई गई थी। There is more than meets the eye, जो हम बोलते हैं। जैसा समझाया गया लोगों को या जैसा बताया गया वैसा नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। अब तो ये बताना विभाष, पहली बात तो ये बताना मुश्किल हो गया है कि वो जो पिक्चर 12 तारीख का फोटो है केक के साथ, वो केक वाला पिक्चर पुराना है या नया। ये नया भी हो सकता है क्योंकि वो घर का जो बैकग्राउंड है वो सुशांत के घर का बैकग्राउंड उसके घर का लग रहा है, what lot of people have written on social media, yes, lot of people are saying। और वो आज से नहीं कह रहे हैं, जून से कह रहे हैं। जब पोस्ट हुआ था तब से कह रहे हैं कि 12 तारीख की उस पिक्चर को देखिए आप, 12 तारीख की पिक्चर, उस पिक्चर को आप देखिए, सुनिए, उस पिक्चर को देखिए, बार बार कह रहे हैं। और वो पिक्चर रिया चक्रवर्ती का क्लेम है कि पहले का है, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा? एक, नंबर 1। नंबर 2, ठीक उसके अगल या बगल दिन में 12 या 13 को उस पिक्चर का रिलेशन केक का होना उस पिक्चर में और किसी का बर्थडे होना, ये कोइंसिडेंस बहुत बड़ा कोइंसिडेंस। और उसके एक दिन बाद मर जाना, वो उससे भी बड़ा कोइंसिडेंस है, वो उससे बड़ा। अगर हम मान लेते हैं कि रिया चक्रवर्ती नहीं आई, हटा दीजिए इस पर, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर नहीं आई, सुशांत सिंह राजपूत का वो को छोड़ने नहीं गए, तब भी रिया चक्रवर्ती अपने घर से एक पुराना केक का पिक्चर 12 तारीख को क्यों पोस्ट करेगी? क्यों पोस्ट करेगी? एब्सोल्युटली, वो तो कोई तुक नहीं बनता है, कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे। वो किसको विश कर रही थी? वो कौन सा फ्रेंड था रिया चक्रवर्ती का जिसको वो केक विश कर रही थी? नॉर्मली कोई भी आदमी नॉर्मल फोटो खींचता है तो केक के साथ तो नहीं खिंचाता है, बिल्कुल। कोई सेलिब्रेशन हो तो वो क्या सेलिब्रेशन था? अब वो तो एक्यूज नंबर 1 ही बता सकती है, शी इज इन कस्टडी एंड इसलिए है कि रिया चक्रवर्ती ने वो ही पिक्चर क्यों यूज किया जो सुशांत सिंह राजपूत के घर का बैकग्राउंड का था। अगर वो उस घर में नहीं थी तो
जब वो 8 तारीख को जा चुकी थी तो उनको क्या जरूरत था अपने पुराने पिक्चर को जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में शूट किया गया हो उसको पिक्चर को इंस्टाग्राम पे डालने का क्या मतलब होता है? और तब भी जब 13 तारीख को सुशांत का बर्थडे नहीं था तो फिर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के घर के फ्लैट का बैकग्राउंड का पिक्चर वो भी एक केक के साथ 12 तारीख को क्यों पोस्ट किया? 13 तारीख को आप अगर सुशांत सिंह राजपूत बर्थडे 21 जनवरी को आता है। आप अगर उस पोस्ट को ध्यान से देखें, मैंने देखी है वो पोस्ट, वो बहुत क्रॉप्ड किया हुआ पोस्ट है, सिर्फ जिसमें केक काफी बड़ा दिख रहा है और कुछ लिखा है शायद उसमें, मुझे ध्यान नहीं किया, और बैकग्राउंड का बहुत हल्का सा पोर्शन दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली फॉर हर वो कोई एक फ्रेम जैसा है उनका, फ्रेम है वो उसके घर का फ्रेम है जो दूसरे पिक्चर में साफ दिख जाता है, वेयर शी इज शॉटिंग अगेन। करेक्ट। तो वो कोई फ्रेम का कोना है जो शायद उसमें कैप्चर रह गया, मे बी। And if we are not wrong, she was going through a depression bout, ना? Oh yes, she was in deep depression. Depression bout में ये 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पाउट कर करके पिक्चर डालने का क्या लॉजिक बनता है? आप डिप्रेशन बाउट में हैं and you are putting picture with the pouts. Why? A middle class girl in deep depression, in deep shock, and a woman posting. And Abla Nari. Yes, you don't forget that. उन्होंने कहा है कि हम अबला नारी, मुझे परेशान किया जा रहा है क्योंकि मैं नारी हूं और ये मेन है जो परेशान कर रहे हैं। कितना गलत कर रहे हैं लोग, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो गई है। अरे कौन मैन यार, एक आदमी को मार दिया, अबला वो था कि तुम हो, मर गया वो इंसान, आपने कर दिया दोनों बहनों पे केस। अब वो बहनों को पुलिस वो सीबीआई बुलाने को तैयार है, क्या चल रहा है मजाक? जो विक्टिम है बनाने की तैयारी कर दी है, ये क्या चल क्या रहा है यहां पर इस केस में? और उनके जो लॉयर हैं, फैमिली के जो लॉयर हैं विकास सिंह, उनको ये समझ में आना चाहिए था कि अगर पायल घोष के लॉयर को समझ में आ गया कि जैसे ही ऋचा चड्ढा ने पिटीशन फाइल किया, पायल घोष के जो लॉयर है वो कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने पुलिस के में कंप्लेंट डाला ये कह के कि ये इंटिमिडेट कर रहे हैं, ये मुझे डरा रहे हैं, ये फोर्स कर रहे हैं कंप्लेन वापस लेने के लिए। तो क्या विकास सिंह को समझ में नहीं आया कि उनके I saw an early morning post from you, Sunil. आपने वो डाला है और वो क्यों उनको समझ में नहीं आया पता नहीं। इनफैक्ट that is another fact, we do not want to dwell into that. किस टाइप के लीगल टीम इनको गाइडेंस दे रही है पता नहीं। They need better people to support यहाँ पर एक सस्पेक्ट है, प्राइम सस्पेक्ट है, जो कहीं केक के साथ पिक्चर खींच रहा है। कोई बोल रहा है कि वो सुशांत उसको छोड़ने गया, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ, कोई कह रहा है मिडिल क्लास, कोई कह रहा है अबला नारी। और यहाँ पर दो बहनें जो विक्टिम है उनको एक्यूज बनाने की तैयारी कर दी है, उनको क्वेश्चन करेंगे। So we need some bit of proactiveness from the legal team of the SSR family as well. So they probably neither the family moves till people scream. उस दिन लोगों ने चिल्लाया तो फैमिली हरकत में आई, उसके बाद फैमिली नीतीश कुमार से भी मिली, दिखने भी लगी। If my knowledge serves me right, उनकी जो सिस्टर है प्रियंका in Delhi, I think she is a Supreme Court lawyer herself. Yes, she is. तो मेरा ही कहना है विभाष की जब लोगों ने उस दिन हल्ला किया तो फैमिली करेक्ट किया, उन्होंने सही किया, वो चीफ मिनिस्टर से मिले, उन्होंने लिखना शुरू किया। ये पहले भी करना चाहिए था, लोगों को क्यों बोलना पड़ा? तो उनके लॉयर को भी समझना चाहिए था कि आपके क्लाइंट के खिलाफ एक सस्पेक्ट ने, प्राइम सस्पेक्ट ने सस्पेक्ट बनाने के लिए पिटीशन डाल दिया, उसमें डॉक्टर को भी इन्वॉल्व कर दिया, और आपने कैसे आप उसके राइट्स को सेफगार्ड नहीं करेंगे? यानी आप डरा रहे थे, रिया चक्रवर्ती फैमिली को डरा रही है। रिया चक्रवर्ती का ये पिटीशन बताता है कि या तो मेरे खिलाफ बोलो मत, नहीं तो मैं तुम दोनों बहन को फंसा दूंगी। यही तो बोल रही है, और क्या बोल रही है रिया चक्रवर्ती? वही बोल रही है, एब्सोल्युटली वही बोल रही है, और कुछ नहीं है। तो फिर विकास इंटिमिडेशन एफआईआर को क्वॉश करने के लिए कोर्ट में पिटीशन एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाया कि रिया चक्रवर्ती का वो एफआईआर क्वॉश होना चाहिए, जो मुंबई पुलिस ने 5 घंटे में रजिस्टर कर लिया, 5 घंटे में। Let's hope the legal team and the family members are watching this program and they better take some leaf out of this and they safeguard themselves. बहुत important है कि उनकी फैमिली को हम safeguard करके रखें।
वैसे ही they have undergone a huge amount of trauma, so they better be safeguarded. And surprising लगता है सुनील, in fact we mentioned that the other day also, उनके घर में सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, उनके घर में कमिश्नर ऑफ पुलिस लेवल के लोग हैं, उनके घर में मीडिया पर्सनालिटीज हैं. How come they are not able to understand this? That's something which is surprising. Anyway, coming back to the topic, Vibhash, that we were discussing, if it is at all कि रिया चक्रवर्ती घर पे आई थी, and if you are an IT expert helping CBI to find out whether this is correct or not, what will you do? I want you to summarize largely. So see, that's what I said. See, first and foremost being the CCTV footage at both the locations, location A, Okay. location B. Okay. Let's hope and pray that something somewhere is there for us to capture. Second thing is Sushant's phone. If it is switched off completely, not traveled, that is ruled out. Then accused number one's phone and all her family members' phone. All her family members' phone should be tracked for this period of 12 to 14th, early Okay. morning or afternoon till that time. Apart from that, also the dump data of all the three telecom operators between 12th and 14th of movement between location A from Sushant Singh Rajput's house to location B, accused number one's house. That should be analyzed. That will give you pretty much clear evidence. Apart from that, of course, if they want to look into the car GPS tracking and stuff like that, that also will give them a huge amount of data. But mobile tracking, dump data, tower data will nail it for them, definitely. Okay. मैंने बार बार कहा है कि lot of people around the world, it's not only in India, around the world are looking at electronic evidences, telecom tower dump data, because that's most Vibhash, we actually missed out on one more thing. Even if one presumes कि रिया चक्रवर्ती के कैंपस का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था, रिया चक्रवर्ती के कैंपस के बगल में दूसरा कैंपस है, उनके घर के सामने और ये ट्रैवल करके गए हैं, ये ट्रैवल करके गए हैं यहाँ से वहां तक. नहीं, गाड़ी अगर गेट पे रुकेगी, अगर सुशांत की गाड़ी रिया चक्रवर्ती के अपार्टमेंट के गेट पे रुकती है, तो फिर वो किसी ना किसी कैमरे में जरूर कैप्चर होगी वहां के. उसके अलावा सुनील, आज की तारीख में मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में और इंडिया के हर बड़े शहरों में इतने सारे सर्वेलेंस कैमरास हैं, इतने सारे सर्वेलेंस कैमरास हैं जो हर एक सिग्नल पे होता है. कहीं ना कहीं समथिंग विल गेट ट्रैक, कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा. सीबीआई को आकर के भी 40 दिन के ऊपर हो चुकी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिखा होगा. Okay, Vivash, since you are here and we are on this topic, before I close, I'll take about 10 minutes more. I want to talk about the third window. A lot of people wrote on that day. हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया. हम लोगों ने 2:22 से लेके 10:30 का एक विंडो बनाया और दूसरे दिन 9:35 से लेके 1:45 का दूसरा विंडो बना दिया. ओके, 1 o'clock का दूसरा विंडो बना दिया एज पर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट. सो 9:35 because we was playing on his what is it, PlayStation और वो 9:35 पे छोड़ा था. तो 9:35 से लेके एक हमने बनाया 1 PM तक का विंडो, दूसरा बनाया 2:22 से 10:30 का विंडो. ये तीसरा विंडो जो बच गया, यानी 10:30 से लेके 9:35 मॉर्निंग तक का विंडो, इस पे हम लोग क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? रीजन क्या है? इसमें क्यों नहीं हो सकता? सुनील, ये हमने पिछली बारी भी बात किया था. आप अगर ध्यान करें, 9:30 बजे रात में मीतू दीदी ने कॉल किया था सुशांत को, which call went unanswered. That means फोन ऑन था, फोन ऑन था उस टाइम पर. सुशांत उस कॉल को आंसर नहीं करता है. उसके बाद में करीबन आधा पौने घंटे बाद मीतू दीदी ने एक मैसेज भेजा है, उसको आंसर नहीं करता है. लेकिन उसका एक रीजन हो सकता है कि ये फोन सुशांत के पास नहीं था, बल्कि उन लोगों के पास था जो ये करने के लिए आए थे, और उन्होंने जानबूझ के फोन स्विच ऑफ नहीं किया, क्योंकि फोन स्विच ऑफ हो जाता तो शक आ जाता, इसीलिए उन्होंने फोन ऑन रखा. ठीक है ना, अगर उसको भी माने, रात के 12 बजे, एक तो 9:30 बजे का मीतू दीदी का फोन, करीबन 10, 10:30 बजे के आसपास उनका एसएमएस, दैट बोथ गेट्स अनआंसर्ड. रात में 12 बजे his phone calls up accused number one's phone, which is again an alibi which is unanswered. रात के
2 बजे आई थिंक, उसके बाद में फिर महेश शेट्टी को जो एक कॉल जाता है वो है around 3. 2 या 3 बजे. सो यू नो दीज आर थिंग्स विच हैव प्रोबेबली बीन क्रिएटेड, जिसपे कि कोई रिवर्ट बैक नहीं है. ही हैज ट्राइड कॉलिंग महेश भट्ट. ठीक है, 3 बजे सुबह में सो रहा होगा, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे कभी तो उठेगा बंदा. व्हाई इज ही नॉट कॉल्ड? ही इज कॉल्ड बैक आई थिंक इट सीम्स आफ्टर 11 o'clock. अब कोई भी बंदा 3 बजे सो गया मान सकते हैं, 11 बजे सुबह उठेगा अगर और इस तब विंडो तक को कॉल नहीं करेगा. इस विंडो को कंसिडर कर रहे हैं 10:30 से लेके 9:35 वाले के बीच, और ये मान लीजिए कि सिर्फ कहानी है, 12 बजे कोई कॉल नहीं किया गया था रिया चक्रवर्ती को, 3 बजे कोई कॉल नहीं किया गया था महेश शेट्टी को, कोई कॉल नहीं किया गया था. फिर उस बीच में, क्योंकि विशाल सिंह राजपूत, ये तो मुंबई पुलिस का स्टेटमेंट है ना सुनील, ये तो मुंबई पुलिस के स्टेटमेंट में है ना कि 12 बजे का कॉल, 3 बजे का कॉल, ये सब तो उनके स्टेटमेंट में है शायद, इफ आई मिस्टेक नॉट, अगर मुझे याद है सही तो ये उनके स्टेटमेंट में है. तो वो क्या बेस पे स्टेटमेंट दिया है उन लोगों ने फिर? तो चलिए मान लेते हैं कि वो बना दिया उन्होंने, एज ए एलिबाई यूज किया. लेकिन फिर भी तो सवाल आता है ना कि 10:30 बजे के बाद ये दोनों एलिबाई हो गया, फोन किसी और के पास था, और एलिबाई बनाने के कारण टू शो कि ही वाज अलाइव एंड ही वाज अवेक, उसने कर दिया फोन. लेकिन फिर भी ये 10:30 से 9:35 वाला विंडो रूल आउट कैसे हो जाता? ये तो एलिबाई वैसे भी बन सकता था. और 1:30 बजे रात में पिठानी, 1:30 बजे रात में पिठानी का भी स्टेटमेंट है. विशाल सिंह राजपूत का स्टेटमेंट था, उसने कहा था जब वो आया था हमारे प्लेटफॉर्म पे कि 3:30 o'clock उसको लगभग मार दिया. 3 साढ़े 3 बजे का उसका पता नहीं क्या बेस है. मुझे फैमिली से जुड़े लोगों ने बताया, और उसने शुरू में ही कहा है ये. yes, एकदम शुरू में, आई थिंक पहले 10-15 दिन हम लोग रूल आउट किस बेसिस पे कर रहे हैं? मतलब लॉजिक क्या है? ये दो कॉल एक लॉजिक. हम लोगों का लॉजिक यही था सुनील कि अगर किसी की सिस्टर उसको कॉल करती है और वो बंदा अगर सो गया है तो क्वाइट पॉसिबल कि आप उस कॉल को मिस कर जाएंगे और उस मैसेज को भी मिस कर जाएंगे. बट आप फिर 10 बजे जग करके या 12 बजे जग करके आप किसी और को फोन करेंगे और सिस्टर के कॉल को रिवर्ट नहीं करेंगे, मैसेज को रिवर्ट नहीं करेंगे. 1:30 बजे रात में पिठानी सीज हिम. इस बात को मान लीजिए आप, इस बात को हम लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का फोन उसके पास नहीं था. अब ये भी मान लेते हैं कि जो बीजेपी के लीडर क्लेम कर रहे हैं कि 3 बजे रात में उसको छोड़ने गए, ये भी मान लेते हैं. तो हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती आई हो उस दिन रात को, वहां पार्टी चाहे प्राइवेट ही सही चल रही हो, और 3 साढ़े 3 बजे के भी आसपास सुशांत सिंह राजपूत छोड़ने गए हो, और जब वापस आए हो तो जो पार्टी में बाकी लोग आए थे उन्होंने काम कर दिया उसके बाद. ये हो सकता है. हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है. अब इस केस में तो आप किसी चीज को भी रूल आउट नहीं कर सकते. Why am I asking this question today is because there is a claim by a person कि 3 बजे के आसपास रात में रिया चक्रवर्ती को छोड़ने सुशांत गए थे. अगर ये प्रूव हो जाता है करेक्ट है तो फिर ये विंडो रेलिवेंट हो जाता है ना. उस दिन हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं. फिर 3 साढ़े 3 बजे वाला जो डेथ टाइम है वो भी हो सकता है. बिकॉज एक चीज है सुनील, मैं अगर मुझे याद है, यस आई रिमेम्बर नाउ, कि हमने एक और चीज के लिए इसको रूल आउट किया था बिकॉज उसके जो लाइगेचर मार्क्स हैं उसके गले पर वो बहुत डार्क हैं. इवन इफ इट इज ऑफ स्ट्रैंगुलेशन इट विल नॉट बिकम दैट डार्क लेस देन 12 hours. सो अगर हम 1:30 बजे 1:45 बजे के करीब ऑफिशियली अनाउंस किया गया सुशांत के डेथ को, उससे अगर हम 12 घंटे पीछे जाएं तो हम फिर वापस वो रात के 12 बजे के आसपास आ जाते हैं. हाँ, अगर 2 बजे के आसपास बॉडी रिकवर हुई है और उसके पीछे जाते हैं तो 2 बजे रात में पहुंच ही जाते हैं. फिर रात में 2 बजे के पास आ जाते हैं हम. वो 3 भी हो सकता है, जहां 12 घंटे 5 घंटे भी हो सकते हैं. तो दैट विंडो 1-8 घंटे हो सकता है. 1-8 घंटे यहाँ वहां इज पॉसिबल. रिया को 3 बजे के आसपास छोड़ने गया हो और जब छोड़ के आया हो तब तक सारा इंतजाम हो गया, जैसे छोड़ के आया उसको मार दिया. पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल. अगर ये बात प्रूव हो जाती है फिर उसमें एक ही चीज जो समझ में नहीं आता है कि अगर कुछ लोग थे और सुशांत का फोन लेकर के अगर रखा हुआ था तो सुशांत को छोड़ देंगे जाने के लिए बाहर, ड्रॉप करके आने के लिए उसकी सो कॉल्ड एक्स गर्लफ्रेंड को. इस बात की गारंटी आप कैसे लेंगे कि उसमें केवल सुशांत और रिया गए थे? ये कैसे लेंगे गारंटी?
वो पता नहीं। अब वो तो जिन्होंने देखा है वही बता सकते हैं, या जो गई थी साथ में वो तो है अभी, देखा जो सुशांत कहा तो जा है रहा नहीं अभी है बताने के लिए। तो सिर्फ कार गई। क्या बोल रहे हैं आप? आवाज कटी आपकी। उनका देखा तो उन्होंने सिर्फ कार। एक कार, स्टेटमेंट ये भी आया एब्सोल्युटली, है कि उनको घर तक एब्सोल्युटली, फ्लैट तक छोड़ने के लिए गए सुशांत। लेकिन इस बात को एब्सोल्युटली। देखा किसने रात को 3 बजे, नहीं देखा मुझे मालूम नहीं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एब्सोल्युटली। है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की गाड़ी एज पर सीसीटीवी फुटेज अराउंड द प्लेस, अब तो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिलेगा विवाश इतने दिन बाद। अब नहीं मिलेगा, बट उस टाइम पे तो शायद मुंबई पुलिस ने कलेक्ट किया होगा कुछ फुटेज, या सीबीआई भी आज से 41 दिन पहले आई थी, उन्होंने कुछ कलेक्ट किया होगा, या 45 दिन पहले आई थी, 1.5 महीना करीबन हो गया सीबीआई को। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग। अगर मान लीजिए सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की कार मूव हुई, हमें ये मालूम नहीं कौन सी कार से गए थे, अगर सिर्फ कार मूव हुई और मेजोरिटी मूव हुई मान लीजिए, तो फिर क्या ये पता चल जाएगा कि कितने बजे मूव हुई थी? Yes, so that's what I said. See, सबसे बड़ी बात है, if I remember, I'll reiterate for you and for so many other people who can know, अगर कार from location A to location B move हुई है, you will know the exact time by the second. So let's say रात में 9:32 को अगर वो कार यहाँ से चली, कितने मिनट बाद वो कहाँ पे पहुंची, किस सिग्नल पे कहाँ कहाँ गाड़ी कितने देर के लिए रुकी या नहीं रुकी, क्या स्पीड पे कार वॉज बिंग ड्रिवन, क्या स्पीड पे कार चल रही थी, इवन दैट कैन बी ट्रैक्ड। ऑल्सो वॉज इट दैट दे वेंट फॉर अ ड्राइव अराउंड, वो भी पता चलेगा। किस स्पीड पे गाड़ी चली है, दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ अ जीपीएस ट्रैकिंग इज, you can know the speed at which it was driven. Also, time, of course, it will give you an exact timestamp. It will also give you the speed at which it was being driven. Now here goes the possibility. Another possibility is that Riya Chakravarti, if the again I am saying, because अब ये बीजेपी के लीडर ने क्लेम कर लिया कि सिनेरियो चेंज हो गया, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। अगर मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत 3 बजे छोड़ने के लिए गए, 3:30 बजे तक आ गए, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में चले गए, जिन लोगों ने मारा उन्होंने एंट्री एग्जैक्टली वैसे ही की जैसा हम लोगों ने छत के बारे में बात किया था। उसमें एक ही चीज बचता है ना, जो आपने सवाल पूछा था कि उनके मार्क्स जो है इतने डीप क्यों है। तो रात वाले में भी तो एक क्वेश्चन है ना जो मैंने पूछा था, जो क्या? उसमें भी तो लैप्स है ना, रात वाली थ्योरी में भी तो लैप्स है कि क्या? बॉडी एसी में रह जाए और इतना पीरियड निकल जाए और बॉडी न स्वेल हो, न बॉडी में कोई मतलब कोई बॉडी के what is the word? Decomposition. Sunil, I'll tell you that I confirm that. Decomposition, you explained that last time. A lot of doctors also, I think Dr. Sonia Acharya Gupta came and she explained. It takes time. I know that. And today I'm asking, yes, knowing fully well, that the decomposition happens after that, but the process of decomposition starts, yes, even if it is minor. And that can, yes, easily be traced in the postmortem report. But postmortem report doesn't mention any of that. Any of that. This postmortem is a botched up postmortem, Sunil. Yes, completely okay, botched up postmortem. Okay, that's okay. We know that. मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए वो भी नहीं है, बॉडी में एयर इनटेक भी नहीं हुआ, वो भी कुछ भी नहीं हुआ, बॉडी का कोई और रिएक्शन ही नहीं हुआ, सिर्फ एक रिएक्शन हुआ और वो बहुत रेलिवेंट है कि उसके पांव में ब्लड आया, क्योंकि जनरली आप किसी को खींचेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो ब्लड पांव में जाएगा, ठीक है। बॉडी बहुत देर पड़ी हुई थी तो पीठ पे ब्लड था, उसके ब्लड क्लॉट हो गया था। तो ये सब चीजें जो इंडिकेट करती हैं वो चीजें भी तो मॉर्निंग पे इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड को तो पांव में आने के लिए 1 घंटा 2 घंटा लगेगा। अगर रात में हुआ होता तो बहुत डीप होता, लेकिन डीप तो नहीं था, और रेडिश था। अब that's something which only a doctor can tell us कि जो पैर में जो स्पॉट्स दिख रहे हैं वो कितने घंटे में आता है। That's something which I mean very difficult for us to understand. I'm only trying to understand विभाष कि अगर ये बात जो बीजेपी के लीडर कह रहे हैं अगर वो सही है कि 3 बजे छोड़ने गया, तब फिर क्या उसके बाद कब हो सकता है कि वो सारी चीजें जो हम लोग लिगेचर मार्क के कलर और इस सब की बात करते हैं वो मैच कर जाए? कब हो सकता है और कितने घंटे में हो सकता है? So that's what Sunil, see, in fact, जहां तक मैंने कुछ
डॉक्टर से भी डिस्कस किया था, आई मेंशन दैट जो लिगेचर मार्क्स है, फॉर देम टू बिकम दैट डार्क, इट नॉर्मली वुड टेक अबाउट 12 hours. That's Okay. one. Second thing is, आपने जो बॉडी डिकम्पोजिशन की बात कही, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. It depends on the gender. It depends on the age of the person who's been strangulated. It depends on the temperature at whichever city you are. Humidity कितना है, क्या है, उसने क्या खाया है, नहीं खाया, बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है. That can take anywhere from 12 to 36 hours to decompose and start smelling. That's what doctors say. Anywhere between 12 to 36 hours. So we are very well within the 12 hours. अगर हम रात के 10 बजे को भी लेकर के चले और दोपहर के वो 1-1:30 लॉजिक ज्यादा इफेक्टिव है विभाष की. अगर आपको कमरे को अंदर से बंद भी करना था, बंद करके एसी ऑन रखा गया है. नहीं, मैं कह रहा हूँ वो भी सब मान लिया, एसी ऑन रखा गया, कमरे एग्जिट जो है, अगर टेरेस से एग्जिट हुआ है तो रात में इजी होगा उतरना भी और चढ़ना भी, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं होगा कोई. Absolutely. दिन में कोई नहीं चाहेगा. Yes, I remember now. ये भी हमने बात डिस्कस करी थी, और सुबह में आपने मुझे पूछा तो मुझे अब याद आ गया कि आपने पूछा था सुबह में क्यों नहीं. See, वो उसका जो घर है, वो बिल्डिंग जो है रोड साइड पे है. इट्स बैंक ऑन टचिंग द रोड. सो कोई भी उतना बड़ा डेयरिंग का काम नहीं करेगा कि खिड़की से ऊपर चढ़ करके वो कोई टेरेस पे चले जा रहा है और कोई देखे ना. बहुत मुश्किल है. सिक्योरिटी देख सकता है, गार्डनर देख सकता है, लिफ्ट मैन, सो मेनी पीपल मूविंग अराउंड इन द सोसाइटी, या जो लोग मूव कर रहे हैं बाहर, वो कोई देख सकता है. तो कोई नहीं चाहेगा कि दिन के समय में हो कांड. और ये बात तो सही है. अगर काफी सारे जो भी एक सेकंड, काफी सारे जो भी नेफेरियस एक्टिविटीज हैं, वो रात के गुमनाम अंधेरों में ही की जाती हैं, चाहे वो ड्रग से रिलेटेड हो, चाहे वो मर्डर से रिलेटेड हो, चाहे वो और कुछ हो. In that scenario, how is it possible कि सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं पता था कि रात में लोग बाहर गए? क्योंकि रात से 2 बजे दिन तक का तो इंतजार किया नहीं होगा किसी ने छत पे. बिल्कुल नहीं. They would definitely have known. फिर तो गार्ड्स को पता होगा. They would have known. Building security guards would have known. बहुत मुश्किल है कि बिना उनको जाने किया. Thank you so much, Vivash. I think that was very nice. We had a great discussion. It's always my pleasure to discuss things with you. So thank you so much. Thanks for having me. Thank you. Take care and thanks a lot. Thank you. Okay, so that's where we are. We will connect again at 10 p.m. for the Speak Up India. I hope all of you liked the platform. I hope it has gone without a glitch. I'll check the video after this. All of you also give your feedback that how you like. I'll request some of you to send me a message on my messenger, so that I actually know what was good, what was bad, what did you feel, where was the problem. Problem is more important than the solution or what you liked. So the things that are problematic, which you thought is problem, is what you mentioned more specifically. And yes, this case, there are 3 developments, major developments today. I'll be talking about the other 2 at 10 p.m. during Speak Up India. And then I'll also open the platform for all of you to speak on this topic as well as the other 2 topics. We'll also talk about Hathras. We have not left the Hathras gang rape case, because there has been another gang rape in Balrampur. And there is another rape with an 8-year-old girl or a kid in Hapur. We will talk about that during Speak Up India, and hope that CBI soon declares it as a murder by incorporating section 302 in its FIR. यानी अपने FIR में जल्दी से जल्दी CBI 302 दफा 302 को शामिल करें, ताकि ये प्रूव हो कि सुशांत सिंह राजपूत was murdered. At least we will know one thing very clearly, that what we wanted to know from 13th and 14th June onwards. 13th June तो आ रहा है बार-बार because of the death. So what we want to know from 14th or 16th June onwards, that what happened in his flat on 13th or 14th June. How did Sushant die? Who killed him and why? How, who and why can come later. But at least we want to know कि सुशांत सिंह राजपूत died of suicide or murder. So the moment CBI incorporates 302, यानी CBI ने जैसे ही धारा 302 को FIR में शामिल किया, ये क्लियर हो जाएगा कि it's a simple case of murder and not suicide. So that will be a big news. Just waiting for a confirmation from CBI, because Republic TV would not flash something as important as this without confirming it. So I believe Republic TV
for at least this information, because this is a very sensitive information. No reporter would take the risk of putting something like this on air without confirmation. And a final word from CBI is what we are awaiting. The day it comes, it will be a big day for all of us. On that note, thank you so much for connecting. I shall be back at 10 p.m. with Speak Up India from my normal mobile phone, because this doesn't give the open opportunity to all to come and connect, and it becomes a problematic connecting one and then exiting another one and then taking a third one. So we'll continue with our normal cell phone or a mobile phone mode for Speak Up India. 10 p.m. Stay in touch, have your dinner, and come back at 10. Stay safe, take care.